Good afternoon. Welcome to EduSat Network. Friend, as you know, today we have discussion on the new changes in television. As you know, in the recent past, the whole spectrum of broadcast has changed, be it radio or televisions. The entire, whether it's formats, presentation or technology, at all level, it has transformed. So, what the major changes have occurred in the in this decade, or you say what is likely to also happen? We will discuss on this issue. And for discussion on this very topic, we have in the studio Professor S.R. Chari. He is an eminent faculty at Indian Institute of Mass Communication, very premier institute of the country. And Professor Chari is a true media person, so he knows and all the nitty-gritty of the television industry and how it is likely to change, and also been witness to these changes. So I hope his knowledge and experience will help us to understand the new changes what has occurred in the recent past in a new perspective. So on your behalf, I welcome Professor Chari for EduSat lecture on this very topic, the new changes in the television. So welcome you, sir. Thank you, Dr. Amarendra. We are happy with we're going to talk about all these changes which you already mentioned. Is this that there has, to my mind, there are two basic changes which are happening. One, of course, what you have mentioned, all kind of changes which are taking place on the format, presentation, and the channel orientation, production, technology. All these are changing, and they're bringing out a new kind of scenario. And the second change is, of course, the content part of it. How the content is being handled by this whole new gamut of television channels which are there. In fact, there's been an explosive growth in the television channels, number of channels, content. We see that so many channels are there now, and all these channels are trying to find their space in the arena, and they're all players, and they're all there for earning revenues and doing good business. Sustainability is also another important area. In view of that, it all becomes very complex. What kind of a revenues they earn, what kind of a TRPs they get, what kind of an eyeballs they attract. All this is developing. This is one scenario. But to my mind, as I see it, there is a larger scenario which is emerging, which is technology driven. And because of the technology, the larger scenario which I am talking about, the broader scenario which is emerging, is this, that the whole orientation of broadcasting itself is changing. And we are now, I would say, moving towards an area of broadband which is more economical, financially viable, and the large number of people are involved in that. And what we call web journalism, web television, these are the areas, IPTV, these are the new broad areas which are emerging, and they will be seen more and more playing a prominent role in television broadcasting in the coming years. Now, having said all this, let us now take a look at the existing scenario. क्या हो क्या रहा है कि हमारे आज जो है, how much of television last few years, अब 90s में जब गल्फ वॉर के बाद जो टेलीविज़न सैटेलाइट टेलीविज़न का एक्सप्लोजन हुआ था, तब से लेके आज तक जनरली वी जस्ट हैव अ लिटिल क्विक लुक कि किस प्रकार हमारी ग्रोथ हुई है. दिस इटसेल्फ इज अ ह्यूज चेंज विच हैज टेकन प्लेस. टेक अ लुक एट दिस स्लाइड. टेलीविज़न इन इंडिया, आज भारत में टेलीविज़न की क्या परिस्थिति है, आप देखेंगे कि यू विल सी दैट अबाउट डिफरेंट आंकड़े हैं, 134 टू अबाउट 180 मिलियन हाउस होल्ड्स, जबकि 200-250 मिलियन हाउस होल्ड्स हिंदुस्तान के अंदर कहे जाते हैं हमारे 1.2 बिलियन पॉपुलेशन के. उसके अंदर 134 से लेके 180 मिलियन हाउस होल्ड्स, यदि हम उन तमाम लोगों को गिने जो जिनके पास टेलीविज़न ना होते हुए भी वो अड़ोस पड़ोस की यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में वो टेलीविज़न देखते हैं, those people who are watching television from the neighboring areas, if they include all of them, then the figure will add up to 180 million households. It's a huge number. बहुत बड़ी तादाद में लोग उस टेलीविज़न, इनफैक्ट कई जगह कहा गया, लिखा गया है कि टेलीविज़न व्यूअरशिप इन इंडिया इज़ परहैप्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. यदि हम तमाम उन चैनलों को भी गिन के देखें कि कितने चैनल्स हैं, और इफ यू लुक एट ऑल दैट,
It's one of the biggest, in fact, the biggest viewership in the world. That's one place they would say. And then again, out of these 180 odd million households, you will say about more than 103 million households जो हैं वो केबल और सेटेलाइट टेलीविजन के व्यूअर्स हैं. और एक emerging टेक्नोलॉजी जो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, that is the direct to home viewership, which is also growing in terms of numbers and also as a good revenue model, and clarity भी उसमें ज़्यादा है. डायरेक्ट टू होम जो आ रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ही वो इट्स बिकम काफ़ी सुविधा है. Not only the new technology, it is the transmission itself is becoming HD TV, high definition television भी उसमें आ रहा है. So all this is developing, and this is the new direct to home is also becoming a very important. DTH आप सब लोग देखते हैं. इसके अलावा अब देखिए, there is a look at this another interesting feature which is happening. एक ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आप देखेंगे एक अभी हमने जनवरी में ये कहा था कि 800 मिलियन यानी 80 करोड़ लोग जो हैं मोबाइल्स यूज़ करते हैं. और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके अंदर 3G की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोविजन फॉर वैल्यू एडेड सर्विस विच गोज इनटू गिविंग इवन टेलीविजन अब उपलब्ध होने लगेगी. तो टेलीविजन ट्रांसमिशन यदि मोबाइल्स में चले जाएगा तो भारत के लिए, इंडिया के लिए एक ये बहुत ही बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिससे भी एनॉर्मस व्यूअरशिप हो जाएगी. 800 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं, इनमें से मतलब यदि हम 10%, 20%, 30% भी हम कहें वैल्यू एडेड सर्विसेज लेते हैं, उससे भी मतलब बहुत बड़े आंकड़े इसमें सामने आते हैं. सो वैल्यू एडेड सर्विसेज में अब तो नाउ यू नो we are already using radio is also coming, FM radio is already there. और उसके अंदर साथ साथ we also have data, we also get information, cricket updates, news updates, तमाम चीज़ें न्यूज़ अपडेट्स आ ही रही हैं मोबाइल सर्विसेज के अंदर. Now the television is also will become feasible with 3G services. और another important thing is which is I'm going to discuss in detail. And because that is, to my mind, the most important thing is the internet. आप देखेंगे today you will find every media house, चाहे छोटे से छोटा अखबार भी हो या फिर टेलीविज़न चैनल हो, everybody has a presence on the internet. वेबसाइट उनका ज़रूर होता है और वेबसाइट के ऊपर वो टेलीविज़न चैनल हो या अखबार हो, they are all present there. and lot of younger people जो हैं 15 से 24 के जो लोग हैं हिंदुस्तान के, it is driven by these people. The youth always looks at internet and they don't have the time to go and sit there for the news. Particularly हम पत्रकारिता की बात करें, we talking about journalism, then all these people, younger people, get their news and information and the issues, the discussions all from the internet. And we have a huge growth of internet users. About 73 million internet users are there, and that is a very, very major factor. And that we will discuss in a little later. But I'm also going to talk about the broadband users. A broadband, हालांकि it's not as popular as the other things because of technology. हमारे यहाँ पे इतनी bandwidth की problem रही है, and which is they are saying, but in spite of that there is 11 million broadband users हैं. और मुझे आंकड़े ये कहते हैं कि 2013 तक लगभग 13 से 14 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हो जाने की और बैंडविड्थ भी तब तक अच्छी प्राप्त होने की प्रावधान है. और विद दिस ऑल दिस इज नाउ गोइंग टू डिसाइड कि कितना व्यूअरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसा होगा और किस माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ब्रॉडबैंड से होगा, इंटरनेट से होगा या मोबाइल से कैसे होगा, और ट्रेडिशनल टेलीविज़न चैनल्स कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे. तो एक इकोनॉमिक वायबल मॉडल किस प्रकार रिसाइकिल करेगा तमाम इंफॉर्मेशन को, विजुअल्स को. दिस इज़ अ ब्रॉड ट्रेंड and which people are struggling to understand and how to go about getting into this. So having said that, now let us look at because we can't deal the whole thing in anything. Let us deal with because we are dealing with journalism and mass communication, let us deal with one area which is very important, that the news channels, and of course also the other entertainment and educational channels also, how they are doing.
You look at today, there are already about 600 television channels. Not 600, little more than 600. 640 के करीब चैनल्स जो हैं ऑलरेडी दे आर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लाइसेंस हैं या मतलब अप्रूव्ड हैं, यानी मतलब 640 के लगभग चैनल दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड जिसके अंदर आधे से ज़्यादा लगभग 300 से ऊपर जो है न्यूज़ चैनल्स ही हैं और बाकी और जॉनर के चैनल्स भी हैं. So all these channels are there in the market and they're all competing for eyeballs. And it's a huge number of channels which is unprecedented in the world. दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ व्यूअरशिप है हमारे यहाँ पे और एंटरटेनमेंट भी है. So all this is happening. Now let us look at and there is not only that, 400 चैनल की एप्लीकेशन अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास है. ऑल्दो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहता है कि अब हम नहीं दे पाएंगे और लाइसेंसेस, उसके बावजूद एप्लीकेशंस आर स्टिल पेंडिंग विद. सो दिस इज अ ह्यूज बिग सिनेरियो. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस स्लाइड. सॉरी, लेट मी चेंज दिस. नाउ लुक एट दिस स्लाइड. देयर आर अबाउट 600 चैनल्स. जिसके अंदर अलग अलग जॉनर भी है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के चैनल्स हैं. हम यदि इसको और भी फैला सकते हैं, बट ब्रॉडली मोटे तौर पे हम देखें, एक तो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जिसके अंदर हमारी एंटरटेनमेंट सारे सीरियल्स और सोप्स और तमाम तरह के एंटरटेनमेंट चैनल्स बने रहते हैं. और उस एंटरटेनमेंट चैनल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव अ ह्यूज व्यूअरशिप. 70% लोग जो हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स को ही देखते हैं एंड देन दैट इज अ बिग व्यूअरशिप. एंड दीज एंटरटेनमेंट चैनल्स, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं, इनकी लागत भी ज़्यादा है. कम से कम 100-150 करोड़ रुपया इसकी लागत होती है और इसमें रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. उसके बाद आते हैं रीजनल चैनल्स. रीजनल चैनल्स, हिंदुस्तान के रीजनल चैनल्स कुछ इंटरनेशनल चैनल्स भी बन जाते हैं. जैसे तमिल चैनल्स जो हैं तमाम साउथ ईस्ट एशिया में भी देखे जाते हैं, और मलेशिया, सिंगापुर वगैरह हर जगह देखे जाते हैं. और हिंदी चैनल्स जो हैं पैन अफ्रीका, पैन लैटिन अमेरिका, पैन पूरा दुनिया भर में मतलब जो है हिंदी के चैनल्स देखे जा सकते हैं. सो इनकी व्यूइंग बहुत ज़्यादा है. उसी तरह म्यूज़िक चैनल्स हैं और म्यूज़िक चैनल्स जो है खैर इनका लागत कम आती है. दे आर लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ओनली अ मैटर ऑफ पेइंग रॉयल्टीज फॉर द म्यूज़िक एंड गेटिंग इनटू द हाउसेस. Then there is also of course the most important, the news channels, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि फॉर्मेट उनका चेंज हो चुका है. अब किस प्रकार की न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ की परिभाषा बदल चुकी है, न्यूज़ की प्रेजेंटेशन बदल चुका है, न्यूज़ के इश्यूज बदल चुके हैं, किस प्रकार न्यूज़ आ रही है, विल डिस्कस दैट. देन ऑफ कोर्स मूवी चैनल्स हैं जो मतलब लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस मूवी चैनल्स, इसमें भी सिर्फ रॉयल्टीज़ के अलावा कुछ और नहीं है. उसके साथ निश चैनल्स हैं. निश चैनल्स का मुझे मतलब है कि कुछ खास विषय को लेके आस्था है, मतलब कोई मतलब इस प्रकार की चैनल्स होती हैं, वो अलग से निश चैनल बनाए रहते हैं और धार्मिक वगैरह. उसके साथ साथ स्पोर्ट्स इज अनदर बिग एरिया. And then apart from that, there are foreign channels which are being broadcast into this country. So this is the whole scenario of about nearly more than 600 channels which are now functioning. And how they are now functioning, I'm looking at the whole top scenario. अब ये most of them, since either satellite cable हो या फिर DTH हो, they are basically satellite channels. Now सैटेलाइट चैनल्स के अंदर लेट अस टेक ए लुक एट दिस पिक्चर नाउ. जहां हम देख रहे हैं जिस प्रकार अपलिंकिंग हो रही है और टेक्नोलॉजी के अंदर भी यदि आप देखोगे तो यू विल फाइंड द सैटेलाइट्स विच आर देयर, दे आर डायरेक्टली ट्रांसमिटिंग टू ए सिंगल मास्टर एंटेनास जिसमें बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह पे इकट्ठी जाती हैं. और कई जगह अभी भी जैसे दूरदर्शन, प्रसार भारती और दूरदर्शन का एक एडवांटेज है जिसमें वो क्या करते हैं कि सैटेलाइट को गैदर करके टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं. जैसे एंटेना हमने देखा वो उधर टेरेस्ट्रियल राइट साइड पे जो एंटेना है वो टेरेस्ट्रियल जो बहुत से कम से कम 600 विलेजेस हैं इस हिंदुस्तान के अंदर. 600,000 बाय द वे, मतलब 60 करोड़ विलेजेस जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 600,000 विलेजेस जहाँ पे
हर जगह पे टेलीविज़न नहीं है और वो केबल नहीं है, और उसकी वजह से भी ये जो केबल जो है वो जहाँ पे मतलब डंडा वो एंटेना लगाकर वो स्ट्रेट अवे अपना फ्री टू एयर वाला दूरदर्शन का प्रसारण देख पाते हैं, वो भी है। डायरेक्ट टू होम है और केबल हेड एंड है। सो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ ट्रांसमिशन विच इज़ नाउ गेटिंग इनटू दिस। अब केबल जो है लगभग एज वी सेड 103 व्हाट यू कॉल द मिलियन केबल एंड सेटेलाइट्स हैं, मतलब लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा सेटेलाइट जो सेटेलाइट व्यूअर हाउस होल्ड्स हैं, जो व्यूअरशिप है, तो वो किस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग DTH इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड दिस केबल एंड सेटेलाइट। एक जो ट्रेंड, नए चेंजेस हम बात कर रहे हैं, पुराने चेंजेस लोगों ने कंजर्वेटिव पकड़ रखे हैं। जो केबल वाले हैं वो अभी भी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम को नहीं लागू हुआ है। जैसे मतलब बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी केबल जो है वो लोग जो है एक 100-150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया देकर सारे चैनल्स वॉच करना चाहते हैं, जबकि और उससे जो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम ना होने की वजह से वी हैव नो रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी हाउस होल्ड्स आर एक्चुअली। लेट अस टेक दिस पिक्चर, दिस चार्ट, जहाँ पे हमने लिखा है कि केबल की चेन बनी हुई है, सेटेलाइट चैनलों से जो केबल आ रहे हैं, यू विल सी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं। छोटे छोटे केबल ऑपरेटर सारे खत्म हो चुके हैं, नाउ मोर और लेस दे आर नॉट फंक्शनल। कहीं पे भी छोटे केबल ऑपरेटर्स हैं नहीं, तो सारे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जो इंडिपेंडेंट केबल ऑपरेटर को सप्लाई करते हैं, फ्रेंचाइजीज को सप्लाई करते हैं, और उसके बाद वहाँ से तमाम से फ्रेंचाइजी और इंडिपेंडेंट केबल ऑपरेटर से लेकर हाउस होल्ड पे पहुँच पाता है द लास्ट मिनट पे। जब तक ये, मगर DTH में एक एडवांटेज है। DTH में एडवांटेज ये है कि वहाँ पे डायरेक्टली आपको सेट टॉप बॉक्स या IRD बॉक्स लगा होगा, और उससे जो है आपके टोटल फिगर्स जो हैं काउंट हो पाएंगे। लेकिन अभी भी केबल चेन के अंदर वो वाली फैसिलिटी नहीं है। अब देखिए केबल के किंग्स बने हुए हैं। सिटी केबल है, हिंदुजास का इंडसलैंड है, हैथवेज है, सुमंगली है, RPG है, ऑर्टेल है, ये बेंगलोर स्टेट गवर्नमेंट का IC है। दीज आर ऑल बड़े बड़े मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स बने हुए हैं जो कंट्रोल किए हुए हैं सारे कितने चैनल्स कहाँ जा रहे हैं। ये दिस इज अ होल न्यू बिजनेस प्रपोजिशन विच इज़ नाउ टेकिंग प्लेस। और जबकि DTH is now emerging, which is more organized and which is able to distribute the signals, television signals, in a much more organized manner, and that is also because that is also able to, now we can have a complete total data of how many people are watching, and the whole business also gets organized. And this because of the DTH, which is now grown so fast, that they say that about 35 million households are watching through DTH. 35 million households, which is a large number in any country. और ये 35 million households जो हैं, जिस प्रकार वो they are watching these households. So having said this, now you will find that this is the existing scenario. अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है? What are the new changes which are coming up? You will find एक तो हमने कहा कि न्यूज़ एग्रेसिव होती जा रही है, द पीपल पर्टिकुलर जर्नलिज्म वगैरह, एंटरटेनमेंट भी इट इज़ नॉट सो मच और पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, पब्लिक इश्यूज नहीं है, हम लोग जैसे सीरियल्स नहीं बन रहे हैं। सीरियल्स जो बन रहे हैं दे आर मोर ऑफ विच आर मोर ऑफ पॉपुलर इंटरेस्ट, पॉपुलर टेस्ट, एंड दे आर प्योरली ट्राइंग टू सेल ड्रीम्स टू पीपल। दिस इज द काइंड ऑफ सीरियल्स विच आर कमिंग अप। न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन के नाम पे एक तरह के फॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है, जैसे मतलब फॉक्स चैनल चल रहे हैं, एक आप देख रहे हैं कि कुछ ओपिनियन को भी सर्कुलेट किया जा रहा है, और न्यूज़ के इश्यूज एक अब पहले तो हमारे पास वो SR के जो है मतलब के था, अभी पीछे हफ्ते आप देखेंगे ये हिना रबानी खर जो वहीं हैं, तो शी हैज़ देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विटर विच इज गोइंग ऑन मैसेजेस, जिसके अंदर आप HR के चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करें, इंडो पाक रिलेशंस की बात करेंगे तो HR के वो हिना रबानी, आप एंटरटेनमेंट चैनल्स में अब देखेंगे
हिना रबानी खैर वो किस प्रकार की बर्किन के बैग पहने हुए हैं उन्होंने पकड़ा रखा है और किस प्रकार के नए ट्रेंड्स वो लाइफस्टाइल्स हैं उनकी। आखिर तौर मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स चैनल्स में भी हिना रबानी खैर की चर्चा थी, जबकि वो कह रही हैं कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट टीम बननी चाहिए। तो आप देखिए किस प्रकार न्यूज़ जो है एक इसको ट्रिवियलाइज कर दिया जा रहा है और लोग जो हैं भाग रहे हैं कि पब्लिसिटी, ग्लैमर, उस तरह की चीज़ों की प्रेजेंटेशन हो रही है। सो लेट अस लुक एट इट अ लिटिल मोर डिटेल मैनर। ये हो कैसे रहा है? Why is it happening? What is this new trend and new changes are happening? Because see, these are happening because to my mind there is a huge now control taken over by the people, नॉट द जर्नलिस्ट। अब पुराने टाइम में एक टेलीविजन चैनल्स जर्नलिज्म करते थे। अभी देखिए, अभी मैंने अभी कहा था शाहरुख खान से ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं हिना रबानी खान, SRK से ज़्यादा HR के ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। क्यों हुई हैं? इट्स बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ चैनल्स। पहले तो न्यूज़ चैनल्स एक तरह से एक तरफा खबरें देते थे। अब क्या हो रहा है कि लोग नोटिस कर रहे हैं, सोशलाइज। अब जैसे हिना रबानी आई तो फटाफट ट्विटर में चला गया कि वो 17 लाख रुपए की बैग कैरी कर रही हैं, तो तुरंत जो है टेलीविजन चैनल्स ने पकड़ा, अखबारों ने छापा, उस पूरी की पूरी जो सिस्टम जो है। अब ये जो है दिस होल थिंग इज इंस्टिगेटेड बाय पीपल हु आर यूजिंग द ट्विटर या फेसबुक। अब टेलीविजन चैनल्स और अखबार और जो मीडिया जो है दैट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल हु आर नोटिसिंग दिस थिंग्स एंड दे आर ब्रिंगिंग इट। तो कहने का मतलब है कि अब वापस जो आम आदमी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्टली न्यूज़ के अंदर, किस प्रकार वो फेसबुक के ज़रिए, ब्लॉग्स के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए वो कम्युनिकेट कर रहा है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से जो मुझे लगता है कि 200 साल 150-200 साल पहले जब खबरें आम कॉफ़ी शॉप्स में लोगों बातचीत के ज़रिए फैलती थी, अब फिर दोबारा से उसी प्रकार होता जा रहा है। वहाँ से पहले खबरें आती थी, उसको फिर वो अखबार में, फिर टेलीविज़न में, रेडियो में आती गई। अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लोग जो हैं खबरों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि कैसे खबरें जाएंगी, और वो खबरें जो हैं फिर जाकर दोबारा से वो मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंस होके आ रही हैं। सो एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो आया है, वो कहता है कि अब जो है जो नए जो सोशल मीडिया ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, आर मेकिंग दिस मीडिया स्टैंड ऑन इट्स हेड। तो उसमें देखेंगे कि आप वो टेलीविज़न सेट उल्टा रखा हुआ है अखबारों के ऊपर, और वो दिस सिंबॉलिक है, जो छोटा सा आइकॉन बना हुआ है वो सिंबॉलिक है। वो दिखा रहा है कि ये नए इकोसिस्टम ऑफ न्यूज़ की जो नया एनवायरनमेंट बन गया है, उस जिसके अंदर इंटरनेट, टेलीविज़न, न्यूज़ और ट्विटर और ये आम चीज़ें बन गई हैं, वो जो हैं उसको बिल्कुल उल्टा कर रही हैं। अब देखिए इसके अंदर आप नए टेलीविज़न, अब टेलीविज़न चैनल्स के देखिए एमेच्योर वीडियोस, आम आदमी वीडियो। अभी जापान में सुनामी आई थी, इतनी ज़बरदस्त सुनामी आई थी, और जो वहाँ के जो पिक्चर्स थे, या फिर अरब अपराइजिंग थी, लोग कैरो के अंदर, कहिरा के अंदर जो बहुत से मतलब लोग यहाँ पे मतलब सदाम उसको मतलब हटा दिया गया था, और इनफैक्ट जो होल अरब अपराइजिंग के अंदर जो आम आदमी की कवरेजेस थी, या जापान की सुनामी की कवरेजेस थी, और या बहुत सी जो एमेच्योर जो वीडियोस थी, आप देखेंगे वो वीडियोस एक प्रोफेशनल कैमरामैन की वीडियो से ज़्यादा प्रभावित थी। दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल बिकॉज वो हिलती डुलती जो कैमरे से, जो अपने मोबाइल कैमरा से या एमेच्योर कैमरा से जो पिक्चर शूट की गई थी सुनामी की, वो बहुत लोगों ने देखा कि किस प्रकार फ्लड के अंदर गाड़ियाँ तैर रही हैं, किस प्रकार फ्लड के अंदर वो घूम रही हैं, किस प्रकार कहिरा में लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे उतरे हुए हैं। ये और अल जजीरा जैसे चैनलों ने ये तमाम आम सिटीजन जर्नलिस्ट जो कहते हैं उनकी वीडियोस को लेकर ब्रॉडकास्ट किया, एंड इट्स बिकम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल थिंग। दिस इज अ न्यू ट्रेंड विच इज हैपनिंग। एंड देन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स, ये सारी जो है वेबसाइट चेंज कर रहे हैं। ट्विटर्स की जाके वो जा रहे हैं। विकी लीक्स देखिए, द एंटायर न्यू थिंग हैज कम अबाउट ऑन दैट। सो कहने का मतलब है कि क्राउड से जो लोग, आम आदमी से जो
सोर्सेस बन गए हैं वीडियो के, टेलीविज़न के, पिक्चर्स के, कंटेंट के, वो दैट इज़ बिकमिंग अ न्यू टाइप ऑफ जर्नलिज्म विच इज़ हैपनिंग नाउ। और तो और आप देखेंगे कि ये जो अभी मोर रिसेंट खबर जो थी, जो जहाँ पे मतलब ये अबोताबाद के बाद जो दैट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय ऑन द ट्विटर बाय द एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक ट्विटर के ज़रिए ओसामा बिन लादेन के यहाँ पे क्या कार्रवाई चल रही थी वो पूरा का पूरा उसने ट्विटर में न्यूज़ देना शुरू कर दिया, एंड दैट द होल न्यूज़ वाज ब्रॉडकास्ट, पीपल न्यू बिफोर टेलीविजन चैनल्स कुड अनाउंस इट। मुंबई अटैक 2008 के मुंबई अटैक में भी कहा जाता है कि मतलब बहुत से लोग जो हैं पहले से ही वहाँ से जो ट्विटर से या फेसबुक से जो जा रहा था उससे काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यही नहीं, एक नई बात बहुत उभर के आ रही है आजकल, वो ये है कि जो 2G स्पेक्ट्रम का जो कांड है, एक्सपोजे है, इस एक्सपोजे को पहले से ही फेसबुक के अंदर इतने लोगों ने, मतलब जैसे ये टेलीफोन की जो टैपिंग की बातें पता लगी, कहा जा रहा, कहीं बहुत जगह लिखा हुआ आजकल नया खोज में पता लग रहा है कि कम से कम 200 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने फेसबुक और ट्विटर के जरिए ये पूरा राडिया केस का एक्सपोजर पहले से ही जानते थे। अब उसको मजबूरन होकर अखबारों को, टेलीविज़न चैनलों को अब उसको भी पब्लिश करना पड़ा। तो एक दबाव जो बना, प्रेशर जो बना ऑन द मीडिया एंड मीडिया चैनल्स केम फ्रॉम द पीपल हु ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दिस। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि जो मतलब खबरें हैं वो आर दे आर बीइंग ड्रिवन बाय, दिस इज द न्यू ट्रेंड विच इज हैपनिंग, द न्यू चेंज विच इज कमिंग हैपनिंग। उसी तरह अब इजराइल पैलेस्टीन की बात थी, वहाँ अल जज़ीरा में पैलेस्टीन पेपर्स को छापा गया, तो उस पर एक्सपोजर ज़बरदस्त हुआ कि किस प्रकार ऑलरेडी पैलेस्टीन के अगेंस्ट इसराइल के साथ कॉन्टैक्ट हो चुका था। तो ऑल दिस थिंग्स केम अप, एंड दिस इज हाउ द न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ। द सोशल मीडिया इज डिटरमाइनिंग, विकसित देशों में, डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी देयर इज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। यू लुक एट दिस स्लाइड, इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर मैप के नीचे यू विल फाइंड ऑल द न्यूज़पेपर्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी सबकी सर्कुलेशन नेगेटिव में जा रही है। पिछले 5 साल के अंदर अमेरिका के अंदर जितने अखबारों की सर्कुलेशन घट कर 16% घट गई है, इंग्लैंड के अंदर 13% घट गई है, और उसी तरह जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह अखबारों की सर्कुलेशन घटती चली जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो सोशल वेबसाइट्स हैं, नीचे जो बार चार्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनकी ग्रोथ बहुत हो रही है वहाँ पे, जहाँ मतलब ये लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं, सोशल मीडिया पेनिट्रेट कर चुका है, वेब पेज बहुत से मतलब खबरें आ रही हैं, यू कैन सी अ लॉट ऑफ न्यूज़ ऑन द वेबसाइट, इंटरनेट, all that is happening, so people are not willing to pay and buy the newspapers. So एक न्यूज़पेपर वाला मीडिया तो बिल्कुल नीचे होता जा रहा है। So similarly this is also affecting television also. Television channels are also getting affected. Only in India of course it is still not affected so much, is basically because हमारे यहाँ पे अखबारों का एक मॉडल ही नया तरीका का है, जबकि अखबार 30-35 रुपया उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, वो हम जो है 2-2.5 रुपये में 3 रुपये में बेचते हैं। वाई आर वी सेलिंग दिस, इस तरह। तो इसका मतलब है कि हम पूरा एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंडेंट हैं, और एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट है तो नेचुरली खबरें जो हैं पेड न्यूज़ और ये न्यूज़ उस तमाम चीज़ें चलती हैं वो। तो हमारा मॉडल ही कुछ थोड़ा टेढ़ा है। और वह जबकि आप लंदन जाएंगे, वहाँ पे अखबार कम से कम 1 पाउंड का होगा, 70 रुपये, जो मतलब वहाँ के हिसाब से भी सब्सक्राइबर बेस्ड है, वो जो मतलब कंज्यूमर है वो पैसे देता है, अखबार खरीदता है। तो इसीलिए वहाँ की खबरें जो हैं देयर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, वो पूरे एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड नहीं है। तो दिस थिंग इज चेंजिंग। सिर्फ हमारे विकासशील देशों के अंदर थोड़े से अभी भी सर्कुलेशन ज़्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार इंटरनेट और ये सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो जाएगा, उस वक्त जो है हमारे यहाँ पर भी अखबारों के, टेलीविज़न चैनल से की डिपेंडेंसी ऑन वेब्स, ब्लॉग्स एंड इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा हो जाएगा। एंड और ये तमाम बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है।
सोशल वेबसाइट का, आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट है सोशल वेबसाइट का दुनिया भर में से दुनिया की एवरेज 23% है, लेकिन इंडिया के अंदर ये सोशल वेबसाइट जो है 43% ग्रोथ हर साल इसका चेंज होता जा रहा है। 2009 से 10 में आपके 43% ग्रोथ हुआ है फेसबुक और ट्विटर वगैरह के, और ये सबसे ज़्यादा देखने वाले यंगर यूथ जनरेशन है, और हिंदुस्तान नेचुरली 75% जो है इज़ अ youth population. That is why this is also changing very rapidly. Similarly, you will find all these networks, Facebook हो, Orkut हो, Yahoo Pulse है, अब तो Google Plus भी आ गया है, तो इसमें नहीं लें, लेकिन all these Twitter वगैरह आप देखेंगे 200-250% से ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं उसके अंदर। Facebook पे 189% ग्रोथ हुआ है एक साल के अंदर। तो इस प्रकार जो ये जो सोशल नेटवर्क्स हैं जिनकी ग्रोथ इतनी तेज़ गति से चल रही है, तो नेचुरली दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल इन द कमिंग टाइम। एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू चेंज, ये किस प्रकार इसको प्रभावित करेगा, ये आने वाले टाइम में क्या करेगा, इसको आप देखेंगे। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम देखते हैं टेलीविज़न चैनल्स के अंदर, आपने शुरू में कहा बिल्कुल कि जैसे अब प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदल गया है, ये इसका कारण ही ये है कि अब हम कहेंगे कि एक हमने टेंट लगा रखा है कि ये फलाना न्यूज़ संस्थान है, ये न्यूज़ फलाना न्यूज़ चैनल है, ये फलाना अखबार है, ये फलाना वो है, ये हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ये हमने एक टेंट लगाया हुआ है। लेकिन इस टेंट के बाहर जैसे मैंने अभी बताया कई हज़ारों लोग लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो कहते हैं हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम खबरें दे रहे हैं आपको, आप इसको लीजिए और इसको पब्लिश करिए, और वो इंटरैक्ट करते हैं और उसके साथ साथ उस खबरों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं। तो उनको हम किस प्रकार नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनको हम नहीं कर सकते उनको, ये जो तो इसलिए अब ये एक बड़ा डिबेट ये हो गया है कि भाई पत्रकार कौन है, ये पत्रकार हैं या नहीं। जैसे अभी ओबामा की बात, कैंपेन की बात करें, पिछले जब ओबामा के प्रेसिडेंट की कैंपेन में जो मे हिल फ्लावर नाम की औरत ने एक इतनी खूबसूरत खबर जो ओबामा के बारे में जो बिटर ट्रुथ्स जो कैंपेन में चलाया था, पूरा अमेरिका को हिला दिया उसने, मतलब उसकी कैंपेन की पूरी वो मोड़ ही बदल दी। तो वो कैसे हुआ, अब वो लेडी वॉज अ फंड रेजर फॉर ओबामा, उन्हें कॉन्ट्रीब्यूटर थी, तो उसने जाके मतलब ये खबर दी, तो उस खबर को मगर लेकिन वो शी इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट, उसने ब्लॉग में लिखा और वो ब्लॉग जो है फिर बाकी चैनलों ने पिकअप किया। उसी तरह बहुत से जैसे मतलब मगर लेकिन इसकी अभी इस प्रकार के लोग जर्नलिस्ट ना होते हुए एथिक्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो फंड रेजर है जो एक जर्नलिस्ट को नहीं होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो बट उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ बनेगी, उनको किस प्रकार का मतलब वो किया जाएगा। आप पिछले समय में जानते हैं कि चीन के अंदर कितने लोग जो हैं एक्टिव थे, स्टूडेंट रेबेलियन आया था, सारी खबरें जो थी वो चाइना की वो वेबसाइट से आ रही थी। क्या ये लोग पत्रकार ना होते हुए भी दे आर डिसाइडिंग व्हाट इज़ द न्यूज़। पूरा वो जो चाइना के अंदर जो अपराइज हुआ, स्टूडेंट रिवोल्ट हुआ, वो सारी इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन वो किसी चैनल ने नहीं दिया, वो तो स्टूडेंट्स ने मतलब उसको आगे बढ़ाया। तो उसी तरह अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई जर्नलिस्ट छोड़िए, ये सब लोग जर्नलिस्ट हैं नहीं, इनको आप टेंट में इंक्लूड करना चाहते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अब पत्रकारिता क्या चीज़ है उस पर भी सवाल उठे जा रहे हैं। अब देखिए सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं, हर चैनल जो है सिटीजन जर्नलिस्ट लेता है और लोग आते हैं उसमें खबरें देते हैं। तो वो क्या वो सिटीजन जर्नलिस्ट अनट्रेन्ड पीपल पत्रकार हैं, वो किस प्रकार की खबरें दे रहे हैं, वहाँ पे एंट्री तो बहुत ही आसानी से हो जाती है, और ये बड़े बड़े चैनल्स उनके साथ लिंक भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब जो है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस प्रकार की खबरें दे रहे हैं। और जर्नलिज्म की क्वेश्चन किया जाए, एक बार बात किया जाए, तो आप रूपर्ट मर्डॉक पिछले दिनों जिनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोज हुआ इंग्लैंड के अंदर, जिन्होंने अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड बंद करना पड़ा उनको, जहाँ उन्होंने किस प्रकार की इंस्ट्रूमेंटल्स यूज़ किए, फ़ोन टैपिंग वगैरह किस प्रकार किया, ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी ख़तरनाक चीज़ें थी, विच वर वेरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की अलग थी। लेकिन ये चीज़ें हर जगह हो रही हैं।
और ये तो खैर उसके पीछे इंक्वायरी हुई, मतलब वहाँ पे मतलब कहा गया कि द मेथड्स वर रॉन्ग, सो देयर वर क्वेश्चनेबल मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट्स गलत हैं, तो इसलिए अखबार को बंद करना पड़ा, उसको अपोलोजाइज करना पड़ा रूपर्ट मर्डॉक को। लेकिन रूपर्ट मर्डॉक का एक और फेस जो है, उनका एक और रूप जो है अमेरिका में, एक बहुत ही सक्सेसफुल रूप भी है उनका, और वो भी अनएथिकल है, मगर लेकिन वो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका के अंदर फॉक्स न्यूज़ नाम की जो टेलीविज़न चैनल है, वो बहुत खूब प्रॉस्परस कर रहा है, और मोस्ट पॉपुलर टेलीविज़न चैनल है फॉक्स न्यूज़, और उसी को हम यहाँ कुछ चैनल हमारे यहाँ पे भी कॉपी करते हैं। और ये फॉक्स न्यूज़ इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो खबरें से ज़्यादा ओपिनियन देता है। अब ओपिनियन देता है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है? ये मतलब ये एक तरफा नहीं है? क्या ये मतलब ये जर्नलिज्म है? इसीलिए मेरा टाइटल था कि ये पत्रकारिता है क्या। अब हमारे देश के अंदर कुछ जो चैनल्स हैं, जिस प्रकार अपनी एक ओपिनियन को लेके दूसरों पे दबाव करते हैं, और डिस्कशंस के ज़रिए आप देखते हैं बड़े एग्रेसिव एंकर्स हैं, आप जानते हैं जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो तमाम एंकर्स जो हैं वो कितने दबाव से अपने एक ओपिनियन को लेके दूसरों के ऊपर रोनते हैं और उसी ओपिनियन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब ओपिनियन नहीं है। तो क्या ये पत्रकारिता है? ये ऑब्जेक्टिव है? क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म को बैलेंस्ड, एथिकल, ऑब्जेक्टिव को नज़रअंदाज नहीं कर रहा, वो इग्नोर नहीं कर रहा? सो व्हाट काइंड ऑफ ए जर्नलिज्म आर वी टॉकिंग अबाउट? इसको जस्टिफाई करते हुए रूपर्ट मर्डॉक ये कहते हैं कि भाई हम तो खुले ओपनली ओपिनियन दे रहे हैं, हम इसको पेड न्यूज़, आपकी यहाँ पेड न्यूज़ की तरह हम छुपा के पैसे लेकर खबरों के गार्ब में या उसके हम उस तरह के ढकोसला काम नहीं कर रहे हैं। हम खुले आम चोट पे कह रहे हैं कि भाई ये ओपिनियन है हमारा, और लोग सुनते हैं इसको, हम लोग पसंद करते हैं, और हम उसको दे रहे हैं। तो क्या एक ये जो ट्रांसपेरेंसी या मतलब खुले आम ओपनली जो ओपिनियन दे रहे हैं, ये आज की नई ऑब्जेक्टिविटी का रूप ले रहा है? जो ऑब्जेक्टिविटी हम कहते हैं कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने एडवर्टाइज किया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये ओपिनियन है, तो इसमें क्या गलती है? हमने तो नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव न्यूज़ है, हमारे यहाँ से लोग उनकी ओपिनियन है, ये एनालिसिस भी नहीं कह रहे हैं हम लोग। तो दिस इज़ बिकमिंग ए न्यू काइंड ऑफ जर्नलिज्म विच इज़ बिकमिंग पॉपुलर। दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड. You will find the same trend in our country also. Many of the channels are adopting that. They are becoming aggressive. They are imposing, they are putting out opinion, and they are pushing opinions also, which are among the people. And this is a new kind of a presentation, aggression and technique. But there are other channels also which are objective. BBC नहीं कहता कि मैं opinion दे रहा हूँ। उसी तरह बहुत से हमारे यहाँ पे भी टेलीविजन चैनल्स हैं जो which say that we are not giving opinion. We don't want to give opinion. Doordarshan doesn't give opinion. Doordarshan says we are objective. But इस तरह की ऑब्जेक्टिविटी की मार्केट के अंदर TRPs कैसे रिएक्ट करती हैं, हाउ डू यू गेट आई बॉल्स, दीज आर ऑल various issues which one has to see what kind of a journalism is going to be coming up. And finally एक और चीज़ है, वो ये जो नया ट्रेंड, जो चेंजेस आ रही हैं, आप जर्नलिज्म और एक्टिविज्म में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप विकी लीक्स देखिए, कितने मतलब विकी लीक्स जो हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी लेके आ रही हैं, और उसके ऊपर स्टोरीज़ खूब छप रही हैं। अखबार हिंदू से लेके सारे टेलीविज़न चैनल वो न्यूज़ दे रहे हैं। क्या ये एक एक्टिविस्ट है असांगे, या वो जर्नलिस्ट है? मतलब इस तरह की मतलब हैकिंग करके वो जो निकाल के ला रहा है खबरें, ये दिस इज़ नॉट अ स्टिंग ऑपरेशन, बट दिस इज़ मोर ऑफ एक्टिविज्म। तो इस तरह के एक्टिविस्ट जो हैं, उसी तरह आप कई, जैसे मैंने कहा भी, टाइम्स नाउ भी कई बार ऐसी इस प्रकार के एक्टिविज्म दिखाता है। उसके अलावा कई बार एक्टिविज्म में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी भारी खबरें निकल कर आई हैं। यदि आप देखें अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, यदि हम पिछला इराक वार की बात करें, पिछले इराक वार के अंदर जितने अमेरिका की खबरें गलत और झूठी खबरें थी, जिसको हम कहते हैं, पूरा एक नाम दिया गया एम्बेडेड जर्नलिज्म करके, कि सारे जर्नलिस्ट हैं वो एम्बेडेड हैं और वो
उनके साथ अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ रह के सारी झूठी खबरें दे रहे हैं, वहीं पर एक्टिविस्ट जो हैं, जैसे अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन है या ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, उन्होंने खोज निकाला कि गुणतनामों बे जो में जिस प्रकार की एट्रॉसिटीज हुई हैं, जिस प्रकार इराकियों को टॉर्चर किया गया, ये तमाम बातें, वो सारी विजुअल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ से उभर के आई हैं और ये सारे एक्टिविस्ट ने दिए हैं। और बहुत बड़ी खबर थी गुणतनामो बे के बारे में, जो विजुअल्स आई और जिस प्रकार के, और उसी तरह सऊदी अरेबिया में डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर कितनी अब्यूजेस हुई, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्टिविस्टों ने निकाल के लाएं। तो अब ये एक्टिविज्म कहेंगे या हम जर्नलिज्म कहेंगे, ये भी एक नया प्रश्न है कि किस प्रकार के, और इस तरह के एक्टिविज्म हमारे यहाँ पे भी है। तो बहुत से टेलीविज़न चैनलों ने बहुत से खूब सारी इस तरह की खबरें उन्होंने निकाल के लाए हैं। दिस इज़ द होल नाउ, इफ़ यू लुक एट ऑल दिस नाउ, दिस ऑनलाइन राइटिंग जो जर्नलिज्म आ रही है, जिस प्रकार वहाँ लिखा जा रहा है, तो यू विल फाइंड पत्रकारों को अब जो है टेलीविज़न में काम करने में जो स्किल्स चाहिए, ये ऑनलाइन में काम करने वालों को उससे ज़्यादा कहीं अधिक मल्टी स्किल्स की आवश्यकता है, क्योंकि वो टेक्स्ट के साथ भी डील करते हैं और ऑडियो के साथ भी, वीडियो के साथ भी, स्टिल इमेजेस भी हैं उनके पास, एनिमेशन भी है, ब्लॉग्स हैं, माइक्रो ब्लॉग्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व। उसी प्रकार टेलीविज़न चैनल्स में भी आप देखेंगे, यू विल फाइंड दैट एवरीबडी इज़ यूजिंग, डिपेंडिंग ऑन all these social websites, I mean social media, they are also depending upon the various kind of poll surveys, social marketing, microblogs, blogs. All these are now becoming part of the media, and this also requires younger generation के जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो मतलब जो the new people who are entering into the market जर्नलिज्म पत्रकारिता के अंदर, they require a lot of multi skilling की आवश्यकता है। उनको हर माध्यम की स्किल्स, writing skills, visualizing skills, or ability to narrate and link right to those visuals, how to use and also decide which media has to be used in that particular place, and several media can be simultaneously used on the website. So all this is to be learned by the the youth people, young people who want to get into the media. ये बहुत ही ज़रूरी है। और आप कुछ आंकड़े मेरे पास और भी हैं जो ये कहते हैं कि एजुकेशनल मीडिया भी इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, पर्टिकुलरली खासतौर पे 15 से 24 के जो लोग हैं, जो यंगर इंडियंस हैं, एक आंकड़ा कहता है कि 40% ऑफ द वेब व्यूअर्स जो हैं वो एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स को देखते हैं। हमारा ये व्यास चैनल को भी 44% लोग जो हैं वो इस चैनल्स को देखते हैं, जो वेब साइट्स पे जाते हैं उनमें 44%। सो इट्स ए ह्यूज डेवलपमेंट नाउ। पीपल आर, पहले तो कहा जाता था कि एजुकेशन चैनल्स में कम व्यूअरशिप है, अब तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है। ऑफ कोर्स मतलब 77% ऑफ द पीपल आर वाचिंग स्टिल एंटरटेनमेंट चैनल्स, बट अ लॉट ऑफ यूथ इज वाचिंग व्हाट्स हैपनिंग इन दिस। सो अब इस तरह के भी इधर भी हमें किस प्रकार नए तरीके के यूज़ करना चाहिए, विजुअलाइजेशन वगैरह और इंटरैक्टिविटी। आगे आने वाले समय में बहुत से यंग पीपल विल इंटरैक्ट विद दिस काइंड ऑफ चैनल्स, and they will demand a lot of information, and they will also decide what is going to come up in further information. So this is one aspect of the whole lot of new developments which are coming up in journalism. अब इसके लिए there is another thing which I would like to add a little bit, is that कि आने वाले समय में जो पत्रकारिता है, even now, right now, whatever it's happening, most of the time we are only giving the news which is now whatever is happening. आम तौर पे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, they are able to give information which is, जिसको कहा जाए एक रिफ्लेक्टेड न्यूज़ है, यानी हमने एक शीशा रखा, जो वहाँ घटना घटी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें क्या हुआ वो हमने बता दिया। और उसी तरह कोई घटना घटी, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक शीशा रखा, वहाँ पे कितने लोग घायल हुए हैं, कितना क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको लेके आए, उसको हमने शीशे की तरह रिफ्लेक्ट कर दिया। इस तरह का काम नहीं चलने वाला, इस तरह का काम आने वाले समय में नहीं चलने वाला, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड दैट देयर हैज़ टू बी, थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करें और उसके पीछे की खबर क्या है वो दें,
या फिर ओपिनियन जिस तरह के फॉक्स चैनल्स वगैरह करते हैं उस तरह के ओपिनियनेटेड दें, जो मतलब जिसका निराधार है और वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, या फिर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन करें और सिर्फ रिफ्लेक्टेड न्यूज़ ना दें, मतलब सिर्फ आंकड़े ही ना दें, फैक्ट्स ना दें, एनालिसिस दें। तो उसके लिए आपको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ओर जाने की बहुत ही ज़रूरत है। और मेनी टेलीविजन चैनल्स आर नॉट गेयर अप टू डू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़, प्रोएक्टिव जर्नलिज्म जिसको मैं कहता हूँ कि वो प्रोएक्टिव जर्नलिज्म जब तक नहीं हो पाएगा तब तक वो देन द कंपटीशन विल बिकम। सो दिस इज एट द मोमेंट द होल थिंग इज इन अ फ्लक्स में है इस वक्त। एक उथल पुथल चल रहा है टेलीविजन चैनलों में, सिर्फ आई बॉल्स कैप्चर करने की उसमें दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ठोस कदम आने वाले समय में हार्ड न्यूज़ के लिए वो बढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए, इवन जस्ट लुक एट दिस, जब हम रूपर्ट मर्डॉक की बात कर रहे थे, इंग्लैंड के अंदर जिस प्रकार वही पत्रकारों ने एक्सपोज किया, गार्डियन से ही खबर आई थी कि किस प्रकार वो जो फोन टैपिंग वगैरह हुआ, वो खोजी पत्रकारिता थी तो गार्डियन की। तो उस तरह की खोजी पत्रकारिता आने के बाद फिर सारे टेलीविजन चैनल्स ने, वो सब ने मतलब उसको पकड़ा और उसको आगे किया। मगर आप अभी भी देखेंगे जो रूपर्ट मर्डॉक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर उसने ये कहा कि भाई आई एम वेरी सॉरी, मेरे को मालूम नहीं था मुझे ये क्या हुआ, क्या खबर नहीं हुई, तो वो सब उसने कहा। और डेविड कैमरून ने भी कहा कि मतलब एक बड़ी ये क्या हुआ, मतलब प्रधानमंत्री ने उसका कॉल्सन जो उनके पास था वो भी वहीं से आया हुआ था, न्यूज़ इंटरनेशनल से। ये सब गलत बातें हुई हैं, ये सब बातें चल रही हैं, ये सब। मगर मेरे हिसाब से ऑल दिस इज ऑल्सो एक रिफ्लेक्टिव न्यूज़ है, प्रोएक्टिव जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन आप देखेंगे एक ब्लॉगर्स ने, कई ब्लॉगर्स, मतलब एक बड़े सीरियस ब्लॉगर्स ने बहुत बड़े खबर छापी है इसी के बारे में, इसी के अंदर, जिसके अंदर ये उभर के आया है, इट केम आउट वेरी क्लियरली दैट देयर इज अ कोल्यूशन एंड कवर अप बिटवीन द पॉलिटिशियंस, बिटवीन द पुलिस एंड द न्यूज़पेपर वर्ल्ड। मर्डॉक का, पुलिस का और पॉलिटिशियंस का एक मिली जुली भगत थी, जिसकी वजह से ये सारा जो टैपिंग वगैरह सब चल रहा है एंड ऑल दिस करप्शन इज हैपनिंग। सो इट लुक्स लाइक देयर इज अ मोर अमाउंट ऑफ करप्शन इन इंग्लैंड दैन इन इंडिया इटसेल्फ। एक तरह से देखा जाए, जिस तरह का मीडिया करप्ट हुआ है वहाँ पे, वो तो बिल्कुल जिस प्रकार ये करप्शन उन्होंने मतलब दिखाया जा रहा था, और उसके साथ साथ ये रूपर्ट मर्डॉक वॉज ट्राइंग टू टेक ओवर बिस्काई बी को देके, तो यदि ये सब कुछ ये गार्डियन नहीं देता तो ऑलरेडी एक नॉड हो चुका था कि मर्डॉक विल टेक ओवर दैट बिस्काई बी। फिर तो वो वही इटालियन बर्लुस्कोनी की तरह मतलब की खबरें छपती फिर उसमें। सो इट वुड हैव बीन अ वेरी sad situation for democracy if this had happened. So fortunately in England also, so there is investigative journalism, proactive journalism जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं, तो उस तरह की खोजी पत्रकारिता की वजह से there is likelihood of more of and this is going to happen in our part of the world also. ये जिस तरह के चैनल्स की प्रेजेंटेशन वगैरह जो है उसके they will eventually have to come out with a more substantive और ठोस खबरें which are researched upon, proactive, and also they would have investigated. This is the kind of a journalism which is eventually have to emerge in our part of the world also. This is what the new changes which I conceive and which I see was happening all around us. Okay, we talked about all the things, but one thing I would like to discuss particularly, because we find in news channel sadly they make conjecture. This is going to happen, like especially in cabinet reshuffle or something, such kind of the things when discussion is to be going on, or the CM is to resign, etc. So to what extent conjecture journalism, conjecture kind of thing is permitted, and how it affects the ethics of journalism? Right, that's a very good question. That's an excellent question, because most of the television channels are doing this. Now, there are two things in this. One is, when I worked as a journalist, I would say that there is something called analysis. If I say Yediyurappa will resign, has to resign, that means this is not a conjecture for me. I say because why should he resign? Because there is already
the central government, in the central BJP party, there is a lot of anger with him, because they are finding politically, they find if they have to attack the central government, UPA government, then they require to look as if they are cleaner. Once the Lokayukta has come out with this thing, so these are my reasons, and there are so many people, the central ministers, the former BJP leaders, the central leaders, and all these people, the calculations is that. And secondly, there is also a small division in the party in the state level. So you give various reasons and then make a analysis, and you also say this is possibility, this is likely to happen. That is ethical. Right. But pure conjecture, as you are saying, that is wrong. The cabinet reshuffle is कि ये हो जाएगा. He will be this minister. This will be this minister. ये हो जाएगा. That is going into Neera Radia kind of a situation. जहाँ मतलब आप जो है उसको एक प्रोएक्टिव तरीके से आप उसको पुश कर रहे हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और यू वांट टू दैट टू हैपन, और उसके लिए जो है दैट इज नॉट एथिकल जर्नलिज्म. तो हमें ये डिसाइड करना है क्लियरली. एक अच्छे पत्रकार जो है इट हैज टू बी एनालिटिकल एंड नॉट कंजेक्चर्स, एंड कंजेक्चर्स आर इन द रेल्म ऑफ व्हाट डू यू कॉल दिस कॉर्पोरेट लॉबिंग. वो कॉर्पोरेट लॉबिंग वाले जो हैं वो दे मेक कंजेक्चर्स. सो lobbying reporting in India, what does exactly it mean? Reporting how the lobbying was done, that's, or the person involved, what's the gesture they are making, that is very difficult to find out, because the lobbyist people generally intermingle with different section of the decision makers, politicians, bureaucrats, etc. So different means, so very difficult to find out. So in that case, is it possible to make a separate kind of thing called lobbying reporting? You see, in this because of this recent expose of Radia tapes and वगैरह जो हुई थी, उसके वजह से lobbying has come into the prominence now. But corporate lobbying has been happening since all this all this time. There is all corporate lobbying is continuously happening, but the only thing is it is not noticed, it is not come into the notice of the common man. Now everybody knows because of the Radia tapes and WikiLeaks. So this lobbying is a corporate phenomena, and there is and a corporate will always try to lobby. Now it is the ethics of journalists, journalism ethics. So this is where I am saying, what I am saying is these television channels or newspapers, all these, they are now dependent so heavily on advertising, and that is why if they are so heavily dependent on advertising, then naturally the corporate people who are giving them the advertisement, if Ambanis are giving advertisement, they will withdraw the advertisement if they go against them. If Tatas are giving advertisement, then they will withdraw advertisement. So the channels will not want to do that, and many of the journalists, senior journalists who are owning shares in these television channels now, and they have become party to it, so they don't want the channel to suffer economically. So this is the reason why this corporate lobbying is making inroads into this. Now, to watch against this, to ward off this kind of a situation, what should be done? What is the solution to this? The solution is very clear to me, that the consumer should pay for consumption of the media product. Okay. If the consumer buys a newspaper at 20 rupees or 25 rupees or whatever it is, or if he watches a television channel and pays a price for that. अब conditional access system की हमने बात की, तो television news channels are paid news channels and you pay for watching that particular channel, then the consumers are paying for this, they are not dependent on advertisers, then at least they can think in terms of getting money from the public. At least some channels will do good and honest job. And they will be responsible. They will be responsible to the public, because public will hold them responsible. Okay. And then if such public channels are happen, then all those other fellows who are drawing obscene salaries, जिस तरह की बेहुदा salaries, मतलब लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं जो टेलीविजन चैनल्स के लोग, वो फिर शर्म से, or they will become unpopular, because good work will be done by people who are reasonably getting their salaries and also are getting
from the public and not dependent on advertising, And moreover, that they have connect with the masses. then the trend can be reversed. So the basic thing is people have to get the consumer has to pay for the product which they are consuming. Another question is related to the subscription of newspaper has got diminished in the Western world. So he also cited some reasons. But in India case, we see it's a kind of social habits. Reading a newspaper is not an individual choice, but it is social reality. They see attach some kind of a society. We can say it's a waking up in the morning and taking a newspaper has become a habit of the people. That's why I think. What is your comment on the likelihood of the subscription of newspaper in India, keeping this in the view? No, I fully agree with you. Newspaper has its own advantage. It has cultural connotations. You pick up the newspaper in both hands and you feel good about the whole thing. You just can't keep on typing and clicking and going on to the news and all that. So that way, newspapers are not going to be replaced. And in India, newspapers are growing. It's not as if they are declining now. I just show you the map where the newspaper circulation has actually gone up. That is one thing. Now, that it has a cultural significance, and there is not only that, there is a lot of people. The literacy has grown over a period of time. It's still not 100% literacy in the country, except in Kerala where they have very high literacy. The more number of readers are adding every day. That is why the circulations are growing up, and also you will find that. Apart from the readership growth, the people's ability to purchase, the purchasing power is also increasing of the people. That is why the newspapers will continue to do that. But now what has happened, what my problem is, the issue which I am talking about is, in spite of this growing, our model is a wrong model. We have evolved a model whereby we are expanding the circulation into lakhs of people readership, and so that we can get so many lakh people are reading, so we get better advertisement, heavy advertisement revenue. So there are now two problems. When you expand the readership or viewership, when you expand it hugely, then you cannot have that kind of a serious readership also. You cannot, if I were to write for a newspaper, I would be able to write which is appealing to 700,000 people, 70 lakh people, rather than if I have to Few selected ones. So earlier newspapers were not dependent upon that. They were writing serious editorial pieces which were read by some people, not necessarily everybody. But now if it has to be made popular, more readership has to go, then it will be diluted. So in fact, it's the dumbing down of the newspaper is happening. A dumbing down of news. And in any case, the idiot box is dumbing down that channels. If it is one is blatantly dependent on Shanidev's Prakop or the other snakes and other things, but there are others are sensationalizing news or trying to, as I told you, Hina Rabani Khar becomes the most important thing for all channels. This is what is happening now. That will not happen if you have people, consumers, paying for that. Having discussed all these issues, now the last question I would like to ask you: how the impact of television program have changed in recent past? Does people still tempt or get allude what is shown on the television, or they now are passive than previous when we compare with the previous a few years back times? Right. You see, what has happened is, now there is a large, as I said, there are a lot of factors involved. One is there's a lot of huge amount of youth is now consuming the media, and for a younger people, not necessarily that they have a lot of other issues they are concerned with, lifestyles, they're concerned with the new trends which are employment, lifestyles and other things. So the change which has come about is now, and a lot of younger people, to my mind, this is my personal view, that a lot of younger people are also earning larger incomes, and they would like to watch television. When we're talking about entertainment, they want to watch a nice and good entertainment. They are not
thinking of serious public issues, and they want to watch bigger screens, LCD screens. They want to have larger high definition kind of a television. And then of course the trend of entertainment industry is also moving towards selling of that kind of a dreams and lifestyles and other things. You'll find all the new serials are happening in that kind of, or they are catering to the middle class housewives in the afternoons, where all kind of serials with the traditional portrayal of women and all that, they are happening. Serious social issues are not coming into the television, even in the entertainment industry. They're not. That's one. And in the news also, the changes which are taking place are also now, as I told you, serious issues are not being discussed. It's only the, it's very sad, but that is what it is happening. So this trend is, if you want to read this seriously, do reading and all that, you'll have to do read the bloggers, or read the people editorials who are writing their own blogs. That's what it is doing. So these changes are taking place, but to my mind, these are a temporary phenomena. This will slowly change. In between, when जब हमने ये कहा था कि वो शनिदेव का प्रकोप के बारे में इतने सारे के बेकार की चैनल्स चलने लगे, तो दूरदर्शन की TRPs बढ़ गई बहुत ज़्यादा. The viewers are watching, they are more happy to watch Doordarshan news than this. So these channels cannot permanently fool people. After some time, they will have to come back and grapple with the existing realities and be responsible. That will happen eventually. Okay. So, well, friends, as you listen, there are various changes has occurred over the years, and some are good, some are we can't say bad, but as the people decided according to the taste of the viewers or whatever the reason, but after some times realizing that this is not going to work in their favor, they have to come to that original things, true things that interest to all people and that finally make benefit to all of us. So this is what we can say, we can draw from today's lectures, that the bad thing is not to stay, and that still we can say that television is in transition stage, and after some years we will find that they will show more meaningful things which will concern all of us. So with this word we would like to conclude the lecture, and I thank all of you for watching the lecture, and on your behalf I thank Professor S.R. Chari for enlightening us on this topic, what the changes has occurred in the televisions. And so I hope this must have benefited all of you. So keep watching Vyas channel for the more educational program. Thank you very much. Thank you very much.